हेलो प्यारे बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे यूपी बेसिक का कक्षा 7वीं का इंग्लिश रीडर 2 का पहला लेसन थैंक यू गॉड। तो सबसे पहले हम इस पोयम को एक राइमिंग स्टाइल में पढ़ेंगे। राइमिंग स्टाइल में हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि जब आप इस पोयम को उस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको यह पोयम जल्दी याद हो जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall. Repeat it again with me. For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall. For the lovely blue sky, the sun, the moon, and all. Almighty God, we thank you, and to you we call. For the lovely blue sky, the sun, the moon, and all. Almighty God, we thank you, and to you we call. Again. For all the things around us, big and small, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon, and all. Almighty God, we thank you, and to you we call. Bless each one of us in your name as we pray. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness, and courage day by day. Give us love, kindness, and courage day by day. Repeat it again. Bless each one of us in your name as we pray. Give us love, kindness, and courage day by day. May we live in peace and harmony where we stay. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you. Comfort me. Give us the strength to serve you. Comfort me. May we live in peace and harmony where we stay. Give us the strength to serve you. Comfort me. Next line. Be with us, O God, in what we say and do. Be with us, O God, in what we say and do. Accept this prayer, O God, we bow down to you. Accept this prayer, O God, we bow down to you. ओके प्यारे बच्चों, तो इस पोएम को आप जितनी बार पढ़ेंगे इस राइमिंग स्टाइल से तो आपको ये पोएम बहुत जल्दी याद हो जाएगी। ओके प्यारे बच्चों, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस पोएम का ट्रांसलेशन। हम इस वीडियो में इस पोएम का 1 बाय 1 लाइक लाइन बाय लाइन हम ट्रांसलेशन करेंगे। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। For all the things around us, big and small. For all the things around us, big and small. अपने आसपास सभी चीजों के लिए, बड़ी हो या छोटी हो, हम सबका धन्यवाद करते हैं। यहाँ जो ऊपर दिखाए गए दो बच्चे हैं वो गॉड से प्रार्थना कर रहे हैं या धन्यवाद कर रहे हैं कि वो बच्चे कह रहे हैं कि हमारे आसपास
जो भी चीजें हैं, चाहे वो बड़ी हैं या छोटी हैं, हम सबका धन्यवाद करते हैं. ओके. For all the creatures on this earth, short and tall. For all the creatures on this earth, short and tall. इस धरती पर सभी प्राणियों के लिए, छोटे या बड़े, हम सभी का धन्यवाद करते हैं. ओके. For the lovely blue sky, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all. For the lovely blue sky, the sun, the moon and all. हम आपका धन्यवाद करते हैं. किसके लिए धन्यवाद करते हैं? प्यारे या हम कह सकते हैं सुंदर नीले आकाश के लिए, सूरज के लिए, चंद्रमा के लिए और सभी के लिए. ओके. Almighty God, इसे हम क्या पढ़ते हैं? Almighty. The L is silent. Okay. Almighty God, we thank you, and to you we call. Almighty God, we thank you, and to you we call. सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम आपका स्मरण करते हैं और हम आपको धन्यवाद करते हैं. ओके. Bless each one of us in your name as we pray. Bless each one of us in your name as we pray. जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, जब हम आपके नाम से प्रार्थना करते हैं, हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए. ब्लेस कीजिए. हम में से प्रत्येक को आशीर्वाद दीजिए. Give us love, kindness and courage day by day. Give us love, kindness and courage day by day. कह रहे हैं दो बच्चे, हमें प्रतिदिन प्रेम, दयालुता और साहस दीजिए. ओके. May we live in peace and harmony where we stay. May we live in peace and harmony where we stay. कह रहे हैं दो बच्चे कि हम जहाँ रहें वहाँ हम शांति और सामंजस्य से रहें. ठीक है. Give us the strength to serve you, come what may. Give us the strength to serve you, come what may. चाहे जो भी हो, हमें आपकी सेवा करने की शक्ति प्रदान करें. ओके प्यारे बच्चों. Be with us, O God, in what we say and do. Be with us, O God, in what we say and do. हम जो भी कहें या करें, हे ईश्वर, आप हमारे साथ रहें. Accept this prayer, O God. Accept this prayer, O God. We bow down to you. Accept this prayer, O God. We bow down to you. हे ईश्वर, इस प्रार्थना को स्वीकार कीजिए. हम आपके सामने सिर झुकाते हैं. ओके प्यारे बच्चों. तो चलिए प्यारे बच्चों, इस लेसन फर्स्ट के थैंक यू गॉड का वर्ड मीनिंग देख लेते हैं. ओके. हमने कोशिश किया है कि उस पोयम में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनको ढूंढकर इसमें उनके मीनिंग को लिखे हैं. तो चलिए एक बार पढ़ लेते हैं. थिंग का मतलब होता है वस्तु, कोई भी चीज. ओके. क्रिएचर मतलब प्राणी, कोई भी जीव प्राणी जिसमें पशु, पक्षी आदि कोई भी आ सकते हैं. ब्लेस मतलब दुआ देना या आशीर्वाद देना. ब्लेस मतलब दुआ देना या आशीर्वाद देना.
प्रे मतलब प्रार्थना करना, करेज साहस, हार्मनी सामंजस्य, स्टे रुकना या ठहरना, सर्व सेवा करना, सर्व का मतलब क्या होता है, सेवा करना, प्रेयर प्रेयर का मतलब भी होता है प्रार्थना, प्रार्थना करना, अराउंड अराउंड का मतलब होता है चारों ओर, आमटी सर्वशक्तिमान, यहाँ ईश्वर इसलिए दिया है कि क्योंकि पोयम में आमटी गॉड लिखा था, ओके, डोंट डाउट ऑन इट। ईच प्रत्येक या हर एक, काइंडनेस दयालुता, पीस शांति, वेयर वेयर का मतलब जहां भी हो सकता है और कहाँ होता है, ओके। स्ट्रेंथ बल या शक्ति, एक्सेप्ट स्वीकार करना, बो डाउन झुकते हैं। तो ओके बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते। तो चलिए अब हम कर लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। दैट इज पहला जो है वो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, मतलब उस पोएम में जितने भी क्वेश्चंस बनते थे वो उस किताब में दी गई थी, जिसमें यहाँ पे A B C D E करके सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि व्हाट आर द थिंग्स फॉर विच वी शुड थैंक गॉड, इस तरीके के 5 क्वेश्चंस हैं जिनको हमने एक जगह पे एक आपके लिए क्वेश्चन के साथ आंसर भी लिख के रखा हुआ है। तो हम आगे वाले स्लाइड में देख लेते हैं, ओके। Comprehension questions. The first question is, what are the things for which we should thank God? What are the things for which we should thank God? ऐसी कौन सी चीजों के लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए? ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनके लिए हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। सो द आंसर इज वी शुड थैंक गॉड for all the things around us. We should thank God for all the things around us. हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, हमें उन सभी चीजों के लिए भगवान का धन्यवाद करना चाहिए। For all the creatures on this earth. For all the creatures. Creatures का मतलब क्या होता है? जीव या प्राणी। किसी भी प्राणी जीव के लिए जो कि पृथ्वी पर हैं, इस पृथ्वी पर हैं, उनके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। For the lovely blue sky, the sun, the moon एंड ऑल, जितना जो भी बहुत ही प्यारा नीला आसमान है, सूरज है, चंद्रमा है, इन सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। ओके प्यारे बच्चों, नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस? व्हाट आर वी आस्किंग गॉड टू गिव अस? हम भगवान से क्या मांग रहे हैं कि आप हमें दें? Okay, so the answer is we are asking God to bless each one of us in your name as we pray. We are asking God to bless each one of us in your name as we pray. यहाँ pray की spelling जो है वो थोड़ी गलत हो गई है, don't mind, just make it A, okay? Just make it A. Come to the next question. Sorry, we didn't. We are asking God to bless each one of us in your name as we pray. यहाँ हम भगवान से क्या मांग रहे हैं? हम भगवान से ये मांग रहे हैं कि आप हम में से सभी को आशीर्वाद दीजिए जब हम आपका नाम लें, या हम आपसे प्रार्थना करें। जब हम आपसे प्रार्थना करें तब आप हम सभी को ब्लेस करें। ब्लेस मतलब आशीर्वाद दें, ओके। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन? व्हाट डज लिव इन पीस एंड हार्मनी मीन? इस पोयम में
दिया गया था ना, लिव इन पीस एंड हार्मनी, तो इस स्टेंजा को नहीं, इस फ्रेज को यहाँ पे निकाल के आपसे पूछ रहा है कि इसका आखिर मतलब क्या है उस पोएम में. ओके, टू कम टू द आंसर, लिविंग इन पीस एंड हार्मनी मीन्स that we should not fight with others, and should help each other in difficult times. Living in peace and harmony का मतलब होता है कि हमें किसी नहीं, आसपास अदर जो भी लोग हैं, हमें किसी से फाइट नहीं करना चाहिए. ओके, झगड़ना नहीं चाहिए. should help each other in difficult times, और अगर कोई भी मुसीबत में है, डिफिकल्ट टाइम का मतलब क्या होता है, जब किसी का समय खराब चल रहा हो या मुसीबत में हो, तो हमें उसकी क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द पोइट वांट स्ट्रेंथ? व्हाई डज द पोइट वांट स्ट्रेंथ? पोइट स्ट्रेंथ क्यों चाहते थे? स्ट्रेंथ का मतलब होता है बल कह सकते हो, शक्ति कह सकते हो, ताकत कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं तीनों में से. तो पोएट जो है, कवि जो है, वो कहते हैं कि क्यों उनको, मतलब क्यों उन्हें स्ट्रेंथ चाहिए थी. तो कम टू द आंसर, द पोएट वांट स्ट्रेंथ इन ऑर्डर टू सर्व गॉड इन एवरी सिचुएशन. पोएट, कवि कहते हैं कि उन्हें शक्ति चाहिए थी, बल चाहिए, ताकि वह भगवान की सेवा कर सके हर एक स्थिति में. ठीक है, हर एक स्थिति में वह भगवान की सेवा कर सके. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द वर्ड, दिस इज नॉट वर्ड, दिस इज वर्ड, एमिटी मीन इन द पोएम? एक पोएम में आमटी करके लिखा हुआ है, राइट? तो इस वर्ड का मतलब क्या है इस कविता में? The word Amity is denoted to God, as God has the greatest power and immense strength. ये जो शब्द है आमटी, ये किसके लिए दर्शाया गया है? भगवान के लिए दर्शाया गया है. किसके लिए दर्शाया गया है? भगवान के लिए. क्योंकि भगवान के पास क्या है? बहुत सारी शक्तियां हैं, बहुत सारी कह सकते हैं. ग्रेटेस्ट पावर मतलब सबसे ताकतवर कौन है? भगवान है. ओके, इसलिए आमटी का प्रयोग किया गया है. चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे. कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोएम. ओके, कह रहा है कंप्लीट द गिवन स्टैंजा फ्रॉम द पोएम. पोएम में एक स्टैंजा आपको दे दिया गया है. ठीक है, यहां से लेकर यहां तक स्टैंजा दे दिया गया है, जहां पे आपको कुछ ब्लैंक्स दिए गए हैं. ठीक है, where we have to fill them, these we have to fill them. ठीक है, पोयम में से ही है, जो स्टार्टिंग के 4 लाइन हैं, एक बार हम पढ़ के देख लेते हैं. और हमने पोयम तो याद कर ही लिए हैं राइमिंग स्टाइल में, तो एक बार पढ़ के देखा जाए कैसे हम इसको भर सकते हैं. for all the things, okay, for all the things around us, big and small. I hope so आपको दिख रहा होगा, ये डबल एल है. ठीक है, for all the things around us, big and small, for all the creatures, आप एक बार अपनी किताब खोल के देख लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, for all the creatures on this earth, short and tall, for the lovely blue sky, the sun, the moon and all. Almighty God, यहाँ क्या था? Almighty God, we thank you, and to you we call.
ये बहुत ही हार्ड नहीं है, आप बच्चे अगर आप पोएम याद कर लेंगे तो आप इसे बहुत ही आसानी से कर लेंगे। ठीक है बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, लेट्स कम टू द वर्ड पावर। द सेकेंड वन इज द वर्ड, थर्ड वन इज द वर्ड पावर। ओके, कह रहा है fill in the letters to form meaningful words given in the poem. Fill in the letters to form meaningful words given in the poem. यहाँ पे कुछ words दिए गए हैं. This is called word, okay? But there are some letters. यहाँ पे कुछ letters दिए गए हैं and कुछ letters को missing किया गया है. Okay? You need to fill those letters. आपको वो letters fill करने होंगे इसमें ताकि आप एक क्या दे सकें, meaningful वर्ड्स बना सके। मीनिंगफुल वर्ड का मतलब क्या होता है, ताकि आप एक सही शब्द बना सके। अब आप कुछ भी उसमें भर देंगे तो क्या वो मीनिंगफुल वर्ड बनेगा? नहीं बनेगा। ठीक है, तो लेट्स सी आपने एक बार किताब खोल लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, किताब खोलने के लिए इसलिए कहा जा रहा है कि हम इसे कैसे ढूंढेंगे कि इसमें हम क्या भरें, राइट? अपनी किताब में आप देख सकते हैं कि ऐसा शब्द ढूंढे जो एच से शुरू हो रहा हो और वाई पे खत्म हो रहा हो। तो कहीं ना कहीं हमने पढ़ा है हार्मनी, राइट? तो हार्मनी की स्पेलिंग क्या है? HARMONY। ओके, इज इट इजी, राइट? कम टू द नेक्स्ट वन। ऐसा शब्द ढूंढे जहां पे के से स्टार्ट हो रहा हो और लास्ट में डबल एस पे खत्म हो रहा हो। तो हमने पढ़ा है काइंडनेस। काइंडनेस की स्पेलिंग क्या है? KINDNESS। काइंडनेस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक ऐसा शब्द ढूंढे जो पी से शुरू हो रहा हो और ई पे खत्म हो रहा हो। जल्दी ढूंढो। तो जहां हमने पढ़ा था एक वर्ड पीस, राइट? तो पीस की स्पेलिंग क्या है? PEACE, पीस। नेक्स्ट, जो शब्द सी से शुरू हो रहा हो। अच्छा देखो यहाँ पे क्या किया है, आखिरी में आपको अंत में खाली दे दिया। कोई बात नहीं, हम उसके नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं जो कि आर है। ऐसा शब्द ढूंढो जहां पे सेकंड लास्ट वर्ड लेटर क्या है? आर। तो हमने क्या पढ़ा है? क्रिएचर। क्या पढ़ा है? क्रिएचर। CREATORS, creatures. Okay. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जहां पे सी से स्टार्ट हो रहा हो और ई पे खत्म हो रहा हो, तो क्या है? करेज। करेज की स्पेलिंग क्या है? COURAGE, करेज। नेक्स्ट वन इज, किससे स्टार्ट हो रहा हो? ए से, ओके, एंड अंत का आपको नहीं दिया गया, लास्ट का नहीं पता। उससे पहले क्या है? टी। हम उससे जज कर सकते हैं, राइट? तो एक वर्ड है आमटी, राइट? ALMIGHTY, आमटी। ओके, आई होप सो बच्चों आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। अगर आपको ये अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।